خبردار میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین حضرات، آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خان برادران کے ساتھ۔ کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ سارے بڑی دیر بعد آئے نے۔ ہاں بھائی، یہ تو نیب والے تو نہیں چوک کے لے گئے سی اے والے آئے تھے بھائی نو چکن، پھر بھائی نہیں ملا، وہ کوڑا چوک کے چلے گئے۔ ایک ہی بات وہ کہہ رہے ایک ہی بات۔ یار بھائی شریف آدمی ہے، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ آپ کس قدر فضول حرکتیں کرتے ہیں، سب آپ کا انتظار کرتے رہے۔ 2 ٹکے کے آپ فنکار ہیں، بڑا بھائی بیچارہ صبح سے آ کے بیٹھا ہو۔ بارش اتنی ہوئی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، آپ کو تو پتا ہے یہاں تک آنے کے لیے 8-10 ہزار لفٹیں لینا پڑی مجھے۔ اچھا، اگر بارش ہو رہی تھی تو یہ کیسے پہنچ گئے؟ تم ایک بھسڈی آدمی ہو، وہ تم سے اتنا پہلے کیسے آ گئے؟ تو کہ میں آیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا یوم آزادی کے سلسلے میں کوئی اچھی سی چیز پیش کرو، تو وطن کی محبت مجھے جلدی کھینچ لائی یہاں پہ۔ اچھا اینو بڑا وطن دی محبت کھینچ دی ہے، سانو نہیں کھینچ دی۔ آپ کو کس کی محبت کھینچتی ہے؟ دراصل مینو لینڈ دین والے کھینچی پھرتے رہے۔ یوم آزادی کے سلسلے میں کچھ پیش کیجئے۔ یوم آزادی کے سلسلے میں نیب زدگان کی نظر۔ نیب زدگان کی نظر، ہوتے آج کل نظر یعنی نہیں آ رہے۔ کمال ہے، کسی کو تو نیب زدگان کا خیال ہے، ان بیچاروں کے لیے کسی نے کلمہ خیر، یہ کلمہ خیر کہنے لگے۔ یہ سن کے دسی بہت ہی گلا نہ کر۔ آفتاب صاحب، یہ پٹرول کی قیمت روز بہ روز بڑھی جا رہی ہے، ان کو روکنے والا نہیں؟ دراصل بھائی پٹرول پی کے ریاض کرتا ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ چیز میں نے پڑھی چند دن پہلے، ایک طرح سے میم تھا انٹرنیٹ پہ کہ مہنگائی سے فائدہ جتنا دکاندار اٹھا رہا ہے، کو گاہک کہے کہ جی یہ کتنے کی ہے، 1000 روپے کی چیز 2 گالیاں دیتا ہے حکومت کو اور 1200 روپے کی دے دیتا ہے۔ سر میں 30 روپے کا ایک پین لینے گیا ہوں، میں کہا یار 30 روپے کا، کہنا بھائی ڈالر مہنگا ہو گیا۔ نہیں، وہ ڈالر پین ہوگا بھائی، ایک پین ڈالر بھی ہے، اور 30 روپے کا صرف وہی ہو سکتا ہے روئے زمین پہ، اور کوئی پین 30 روپے کا نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بات۔ دوسرا پوائنٹ، ہاں جی، تم نے پین سے کیا کرنا؟ انہیں پیو دی پھانسی لکھنی سی۔ اور انہوں نے پھڑیا گیا۔ اچھا جی، ایک سوال بھی مہنگائی کے سلسلے میں صاحب کرنا چاہتے ہیں جی۔ سر، تمام تر حکومتی کوششوں کے باوجود مہنگائی پر قابو نہیں پایا جا سکا، کیوں؟ بھئی نااہلی، یہ نااہلی ہے خالصتاً حکومت پنجاب کی، کیونکہ ڈومینو ایفیکٹ شروع پنجاب سے ہوتا ہے۔ اگر حکومت پنجاب منافع خوروں کو یہاں پہ برائیڈل کر لے تو اس کے اثرات کے پی میں اور اس کی بازگشت بلوچستان اور سندھ میں بھی سنائی دے گی۔ افضل صاحب، اس مہنگائی کا ہم پہ جتنا اثر پڑا ہے، آپ یقین کریں گے ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، میں 100% یقین کروں گا۔ آپ کی حالت دیکھ کے تو لگتا ہے آپ فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں۔ 2-4 دفعہ میں اور بھائی فٹ پاتھ پہ بھی رہے ہیں۔ ایک دن بھائی اور میں فٹ پاتھ پہ لیٹ گئے۔ ارے بھائی مینو کہندا میرے ال منہ کر، مینو ڈر ہوندا ہے۔ میں کہا تیرے ال کرنا تو مینو ہوندا ہے۔ پڑھائی کی بات چھوڑیں، کھانا ایک مشکل کام ہے، لوگوں نے آسان کر دیا ہے۔ ان کو سمجھائیں، ہماری خدمات لیں، ہم ان کو بتائیں گیت کیا ہوتا ہے، غزل کیا ہوتی ہے، ٹھمری کیا ہوتی ہے، دادرا کیا ہوتا ہے۔ ہم نے مشکل ریاض کیے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے۔ بھائی اکثر چوٹیوں پہ بیٹھ کے ریاض کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک دن ناگا پربت پہ بیٹھ کر ریاض کر رہا تھا۔ آپ نے تو دیکھا ہے اتنا حسین پہاڑ ہے، اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ لیکن بھائی سے زیادہ نہیں۔ بھائی ریاض میں گم تھا، پیچھے سے ایک یاک نکل آیا، انہیں بھی آ کے کیا انہیں آ کے بھائی نے کیا استاد جی کٹھے ریاض کریے۔ اچھا، ٹھمری کی ابھی بات ہونے لگی تھی خان صاحب، ہمارا ٹھمری سے کیا تعلق؟ اچھا ٹھمری کیا ہوتی ہے ذرا بتائیں۔ آپ بتا دیں، ہمارے علم میں اضافہ کریں۔ مختلف اصناف ہیں موسیقی کی، اس میں خیال گائیکی نمبر 1 ہے، چونکہ لوگوں کا مزاج جب بدل گیا تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے، تو پھر ہلکی ایک صنف بنائی گئی ٹھمری، جس میں پیار محبت کی چیزیں اور غزلیہ اور واردات قلبی اس کو بیان کیا گیا احسن انداز میں۔ خیال گائیکی بھی ٹھمری کا حصہ ہے، اس کی ایکسٹینشن ہے، آگے اسی کا سٹیپ فارورڈ ہے۔ ترانہ اس میں جو ہے جس میں درت عام طور پہ تو ٹھمری کو اس انداز میں گایا جاتا ہے۔ جب وہ بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی تو پھر گیت آیا، اور اس کے بعد پھر ٹپا ہے اور وہ دوسری چیزیں، یہ مختلف اصناف ہیں۔ گل تو ٹھمری والی تے ہے نا کہ تو عاطف اسلم والی لائی ہے۔ یہ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں،
نہیں میں تو جو کہہ رہا میں ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ایک تو آپ جاہل ہیں ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੜਪ भाई को जानवरों से बड़ी मोहब्बत है। एक दिन बरसात हो रही थी, छोटे याद आती है, छोटा सा कुत्ता ऐसे बैठा हुआ, मैंने उसे उठाया, बरसात में थे। कुत्ते ने भाई ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਭਾਈ ਤੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਕੌਣ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਉਹ ਕਰੋ ਲੱਕੜ ਦਾ ਖੰਭਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਓ अच्छा जी, ये एक दरखास्त पे हमारे पास आए हैं आए आए कि एक चांस हमें और दिया जाए। हम इस दफ़ा फीकी जुगते नहीं करेंगे, हम आपको महजूज करेंगे, एंटरटेन करेंगे। पिछले 7-8 मिनट से कम मैंने एक लफ्ज़ ऐसा नहीं सुना जो एंटरटेनिंग हो। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ भाई हम निकाल रहे हैं, माजरत कर रहे हैं कि आइंदा आपको नहीं बुलाना। ਚਲੋ और ਠੀਕ मैं ब्रेक लेने लगा। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ पहले हिसाब कर लो। क्या? 5,000 ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ओहो, ਇਹ 250 ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ तुम्हारा कितना? 250 250 ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ अबे क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए, हैं? ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਖੋਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਈਦ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਵੇਚ ਲਵੋ। अच्छा जी, बकरे बकरे आप और बेचते खुदा रहिए। का वास्ता, सानू भी शो कर लेने दे। ये क्या लोग हैं? ये लोग भी क्या लोग हैं मर क्यों नहीं जाते इसी धुन पे एक बड़ी मशहूर नात है, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। हमारे अक्सर कंपोजिशन चोरी हो जाती है सारा छड्डो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ भाई और काका, बागी तेरा बहनोई है बार बार ऐसा कूड़ आदमी है रंगीन कुर्ते थे वेस्टकोट पाई है ਇਹੋ ਜਿਹੇ जल्दबाज खुसरे बड़ा नुकसान उठाते ने अच्छा, आपने गौर किया आज सलीम अलवेला ने खास तरह का कुर्ता पहन रखा। यार सलीम अलवेला, इनकी खबर लो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 250 ਦਿਓ 100 ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ वैसे आपको असली खास तौर पर कौन सा गाना अच्छा मेहदी हसन खान साहब एक से एक बढ़कर, लेकिन नौशाद साहब की जो कंपोजिशन है वो अल्टीमेट। मीर तकी मीर का कलाम और नौशाद की कंपोजिशन ये धुआं सा कहां से अल्टीमेट। अगर कहें तो पेश किया जाए कर दें। देख तो के जान से वाह वाह, उठता क्या बात है नौशाद अली की। ये धुआं कहाँ से उठता देख तो जरा बना के। Alright. बैठने कौन दे है फिर उसको आहा, निचंबे दे बंदे कलिए और ये क्या? मेरे रब ने बना आप पे गया जा किधरों चढ़े आया निचंबे दिए बंद कलिए तेरे पीछे पीछे होना हंसा प्यार निभाना दिल लेने वाली है हाय दिल लेने वाली है तुझको पुकारे मेरा और ये क्या बैठने शुरू कर दिया? तुझको पुकारे मेरा प्यार आहा, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा तुझको बात पुकारे सुनो। इस राग के साथ जो बदसलूकी वो करता है, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ओ 3-4 गाने वो ऐड करना चाह रहा है अभी। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ तड़प
के जब न तेरा पुकारा, कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा, मेरे दिल में तड़प के जब न तेरा पुकारा, आजा। बस करो अब। ये क्या हरकत की है आप लोगों ने? हमारे दादा का कहना था जब भी पहाड़ी राग हाथ में आए तो छोड़ना मत। लो जी, ये इनका आखिरी प्रोग्राम। अच्छा अपना आप था 100% श्योर। खातिनो हज़रात, ये था इनका स्वान सॉन्ग। भाई ऐसी की करिए तुम्हें पता है स्वान सॉन्ग क्या होता है? बाकी साहब बताएं जरा। आखिरी गाना होता है। आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं। अच्छा खान साहब ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। चले फिर तो नबे थे। यानी कि उन्हें यकीन हो गया कि ऐसी दफा हो रही उधर बागी नो वे उन्हें की नहीं, सेगमेंट बना दिया आपने, महसूस कर दिया है। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਠੁਮਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ नहीं ਹੋ तो ਗਿਆ मैं अब क्या उनको नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाना। और एक जगह पे जो अनुरोध का गाना इन्होंने फिट किया है, देखिए जरा। मेरे दिल ने तड़प के, ਆਹਾ राजेश खन्ना की याद। क्या बात है। उफ, ਸੁਨੇ ਤਾਂ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। नहीं गाने उस पर बहुत अच्छे पे। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵरेट ਕੌਣ ਹੈ? गुरुदत्त। उस दौर का नंबर 1 गुरुदत्त, फिर दिलीप कुमार और देवानंद। ਸੰਜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ 'ਚ। संजय दत्त ठीक है, लेकिन संजय दत्त इस लीग का ही नहीं है ਗੁਰੂ ਦੱਤ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਦੋ ਫਿੱਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। यार। क्या अहमक है। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ। गुरुदत्त साहब बड़े ग्रेसफुल आदमी सन। नहीं, बहुत हैंडसम। आप सिर्फ एक गाना देख लें, हम आपकी आंखों में। हम आपकी आंखों में इस दिल को लगा दें तो ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਰੀਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। पता है वजह क्या है? जी सर, कभी इस पे गौर किया है कि कुत्ते की मोस्ट फेवरेट जगह क्या है जिसे वो काटना फौरन चाहेगा? आपकी उंगलियां। कि बहुत कन्वीनियंटली उसके जबड़े में आती हैं। तो छोटे आदमी की उंगलियां चूंकि सतह समुंदर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। भाई ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਖਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। भाई ने गद्दी कुत्ता रखा हुआ है। इसने कहां से लिया है? इन्हें एक आवारा जिहा कुत्ता फड़ के उत्ते गद्दी बनी है। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਸੁਗੜ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। भाई इन हालात से दिल बर्दाश्त होके खुदकुशी करना चाह रहा है और इसने को 8-10 अटेम्प्ट्स की है। आप हमारी बात सुन रहे हैं कि इसको देख रहे हैं? इन्हें एक बस दे थले सिर दिता, 4-5 घंटे उत्थे पिया रहा। बस असल च खराब सी, वो को 2 साल तो उत्थे खलोती सी। इन्हें चौकीदार ने आके कुटरिया, उन्हें क्या पता नहीं टायर लाउंड है। हमने बताया अगर मगरमच्छ सामने आ जाए ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉਂਗਲ मारो। मैंने ये नहीं कहा था मगरमच्छ सामने आ जाए तो जाके खास तौर पे करीब जाके उसकी आंखों में उंगली मारते हुए अगर वो आपको पकड़ ले जबड़े पे तो और कुछ नहीं कहा। आप ना उसे मुक्का मार सकते हैं, आप जो मर्जी मारे उस पर असर ही नहीं होना। उसका सॉफ्टेस्ट पॉइंट, जैसे सॉफ्ट वैली उसकी कह सकते हैं आप, उसकी आंख है जो आपकी एक्सेस में भी है। तो एक उंगली से नहीं, दोनों उंगलियां एक आंख में मारे और इतने जोर से मारे ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। इसी तरह का वाकया हुआ। अरे भाई अचानक मगरमच्छ के सामने आ गया। इन्हें मगरमच्छ को फाड़ लिया। मगरमच्छ ने दी आंख च उंगल मारते। भाई ने सोचा बाहर की जो मौत है वो ज़रा कॉस्टली है, क्यों ना घर में इसका एहतमाम किया जाए। इसने सोचा पखे ना लटक के अपने आप को ख़त्म कर लांगा। भाई ने गले च रस्सा पाया, पखे ते पाया, ਲੈਂਟਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪੱਖਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਦਾਦਾ ਹੀ ਉੱਤੇ। ਦਾਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਦਾਦਾ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੋਰੀ ਚ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤਾ। दादा ने अंदर करा दिया। हाँ जी, वो मान नहीं सी रहा कि तू खुदकुशी करन रहा है। भाई ने सोचा जेल में अपने आप को ख़त्म कर लूँ। एक बड़ा कातिल आदमी से कैदी कैदी, एडी एडी मोटी होती अख, एडे एडे लम्बे वाल, एडी एडी मुछ। भाई ने सोचा इतना बदतमीजी करना शायद मैनू कत्ल कर देवे। भाई ने उन्होंने चक वड्डिया,
ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। वो क्यों? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਅਟੈਂਪਟ की, एक और कैदी पे। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਵੜਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ। Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी जनाब। खबर है कि पंजाब पुलिस ने सुबह भर में मुल्तान मॉडल नाफिज करने पर गौर शुरू कर दिया। बड़े फख्र की बात है वैसे मुल्तान पुलिस के लिए। सर मुल्तान ऐसे कामों में हमेशा आगे रहा है। हम तो सिर्फ समझते थे कॉमेडी में ही आगे है, लेकिन ये सीरियस काम में भी बढ़ गया है अभी। सर इन्होंने करना क्या है? ये जो आरपीओ मुल्तान है ना, मैं बहुत ही मुतासर हुआ इनसे। मैं इन्हें जानता तो पहले से था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल था कि ऐसे होनहार पुलिस ऑफिसर हैं ये। और ये यकीन कीजिए, ये अवेयरनेस का नतीजा है, मीडिया का नतीजा है कि अब आप कोई अच्छा काम करेंगे ना, पहले होता था अच्छा काम किया वो उसका हासिल वसूल ही कोई नहीं होता था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हुकूमतों पे डिपेंड करता है। शहबाज शरीफ की हुकूमत में कभी किसी ने कोई आउटस्टैंडिंग काम करना जरूरी ही नहीं समझा। आउटस्टैंडिंग वो होता था जो हमजा को पसंद आए, मतलब मयार हमजा शहबाज था। आज बिल्कुल उलट है। हर कोई मेरिट के चक्करों में, नंबर के चक्कर में, नंबर जरूर टांगने चाहिए, मतलब पॉइंट स्कोर करना कोई बुरी बात नहीं है। और मैं तो वाकई बहुत इंप्रेस हुआ कि एफआईआर का इंदराज ये क्लीशे बन चुका है कि जी हम करवाते हैं। उस बंदे ने, वसीम खान है नाम उनका, जी वसीम खान, करके दिखाया कि जी महज यही नहीं, हमने कम्युनिटी रूम्स बना दिए हैं। कम्युनिटी रूम क्या है? थाने के अंदर एक कम्युनिटी रूम है जिसमें आप मसालती करें यार, आपस में बैठ के बात करें। एक आध पुलिस वाला आपकी काउंसलिंग करेगा, आपको मौका दे रहे हैं, लड़वाने की बजाय आपकी सुलह करवाएगा। लड़वाने की बजाय आपकी सुलह करवाएगा और आपको नेकी की तरगीब देगा। ओए नेकी बड़ी है, और ये बहुत बड़ा काम है। तकरीबन 1100 केसेस गुज़श्ता 5-6 माह में सिर्फ इस कम्युनिटी रूम की वजह से सुलह की शक्ल में बदल गए। ये सारे केसेस जो है अदालतों में जाते हैं और खजल ख्वार बंदा खुद भी होता, दोनों पार्टियां, पुलिस भी होती और अदालतों पर बर्डन एक्स्ट्रा। ये तो वैसे सहले मुमतने है, मैं समझता हूं। ये जो मैं अब बताने लगा हूं ना आपको, ये बात मैंने कई दफा सोची थी, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि आप इसका इजहार नहीं कर सकते। यानी मैं हैरान था कि मैं यहां बैठा हूं ना, मतलब ये कितने फासले पर हमारा ये स्टूडियो है हमारी मेन बिल्डिंग से, लेकिन मेरे मोबाइल सेट के ऊपर 11 मुख्तलिफ स्पॉट्स की मैं मॉनिटरिंग करता हूं। न्यूज़ रूम, इंडस का न्यूज़ रूम, आपके स्टूडियोज, आपके कॉरिडोर्स, आपका एडिटिंग स्वीट, हर जगह मेरे सामने। तो ये एक नया सिलसिला मुल्तान में इसका आगाज हुआ है कि थानों में एसएचओ की सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग, और ये बड़ा ही समरावर रहा है। ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਚਾਲੇ ਖੋਖੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। जी जी, आप सीसीटीवी के अंदर हैं, आप जरा निकले पता चल गया जी ये वहां पे नहीं है, किधर हैं? आपकी फुटेज बताती है कि आप कब आए, कब गए, यहां से उठ के कहां गए और आपने कितना टाइम किस काम पे स्पेंड किया। इससे एसएचओ साहब जो है उन पे खौफ ये रहेगा। खौफ क्या है? असल इशू चेक्स का है। थाने में प्रॉपर टाइम देंगे, अवाम को मिलेंगे तो इश्यूज कम होंगे, एप्रिसिएशन भी मिलेगी। बिल्कुल। कि सर अगर डीआईजी साहब एप्रिसिएशन ले रहे हैं ना चीफ मिनिस्टर से, तो ये कैसे हो सकता है कि एसएचओ आरपीओ से, डीआईजी से एप्रिसिएशन ना ले। ये मैं उस दिन बात कर रहा था उनसे, तो बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई कि जब मैं सीएम को ब्रीफिंग दे रहा था तो एक स्लाइड बिल्कुल खाली चली गई, उसका टाइटल था लैंड ग्रैबिंग। कब्जा होता है ना, कब्जा माफिया जमीनों पे कब्जा करती है, लैंड ग्रैबिंग। तो अक्सरियत ने सोचा कि जनाब ये गलत स्लाइड चल गई है, ऊपर लिखा तो है, नीचे बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है, काली। उन्होंने कहा कि ये आप चेंज करें ना, ये क्या आ गई है? उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा तो इसमें डिटेल्स नहीं। उन्होंने कहा जी होगा तो बताऊंगा ना, डिटेल्स है ही कोई नहीं। देयर इज नो लैंड ग्रैबिंग एट ऑल। तो सर पुलिस के बगैर कब्जा हो ही नहीं सकता। यस, इलाके के एसएचओ के बगैर ना जुआ हो सकता है, ना मुनशियात बिक सकती हैं, ना कब्जा हो सकता है। ये कहना आसान है, करते वक्त बंदा सोचता है कि यार अच्छा खासा को 30-35 लाख रुपया, 40-50 लाख रुपया आ रहा है, तो क्या इसमें ऐसी क्या बात है? ये वो वक्त है जब आप वो बारीक सा फैसला करते हैं कि आपने अपनी सोल डेविल के हाथ बेचनी है कि नहीं, क्योंकि वो तो खरीदार है, हर वक्त आपकी बोली लगा रहा होता है।
बस वो वक्त है, उस पर रेजिस्ट कर लें, फिर सारी उम्र आप अपने आप पे फख्र करते हैं और फिर आप कभी उस रास्ते पे नहीं निकलते। और ये इतनी बड़ी नेशनल सर्विस है। फिर और एक बड़ा अहम काम, एक नया कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नया है, यानी मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखे ना, यानी अगर मुल्तान पुलिस के पैटर्न को पूरी पंजाब पुलिस मॉडल के तौर पे अडॉप्ट करने जा रही है तो उसकी कोई वजह है। मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर होता था, अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है। सर यूरोप में आज भी है, हमारे यहाँ ना बन सका। अब ये कैसे अफसोस की बात है कि यूरोप की मिसाल देनी पड़ती मस्जिद के हवाले से। पहली मस्जिद नबवी जो थी वो कम्युनिटी सेंटर भी था। इतना बड़ा कम्युनिटी सेंटर था कि हर इल्मी समाजी सियासी तहरीक की बुनियाद वहां पड़ती थी। और इससे मिलता जुलता एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, मैं पहले भी उस पर बात कर चुका हूं, खबरनाक में भी खबरदार में भी, वो है कोबान, जापानीज। वो थाने का एक अजीब कॉन्सेप्ट है। यानी आपको याद है कि थाने में आपने पूल टेबल भी रखी हो और वो सिर्फ पुलिस के लिए ना हो, आने जाने वालों के लिए एक कॉमन रूम हो वहां पे, एक छोटा सा रेस्टोरेंट वहां पे, छोटा सा कैफेटेरिया, मोहल्ले वाले उठे, 2-4 मेहमान हैं, उस कोबान में आके बैठ जाए। अब पुलिस की नजर भी आप पे होती है, एक वाकफियत भी हो जाती है, आपको पुलिसिंग की भी समझ आती है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि मस्जिद नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिटी, फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन। और वो क्या है कि डीएसपी साहब, एसएचओ साहब मस्जिद में जाएं, वहां पर एक तरह का वाज है, वो बताएगा कि आपने हालात पर, मामलात पर नजर कैसे रखनी है। भाई आपकी जिम्मेदारी बतौर कम्युनिटी मेंबर क्या है। आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ये चीजें देखनी है, अनपढ़ है तो इन चीजों का सहारा ले, नजर रखें कौन नया आया है, कौन मशकूक है। बिल्कुल। एफआईआर कैसे दर्ज करवाते हैं, 15 पे प्रॉब्लम हो रहा हो तो क्या करते हैं, रेस्क्यू 1122 किस चिड़िया का नाम है। ये सारी चीजें आप समझाएंगे तो वो समझेंगे ना, क्योंकि हमारे अवाम, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये नब्बाज है ये शख्स, ये पहुंच गया उस तक। हम कहते हैं जी, जैसे अमानुल्लाह साहब, हमेशा जब वो अमानुल्लाह तो हम ऐसे हकीम साहब, बाय द वे हकीम साहब ये हमने बताया नहीं, 2 दिन से गैर हाजिर हैं, उनकी साहबजादी की शादी है जो हमने आज अटेंड की थी सबने। वो जब हकीम साहब बन के आते हैं ना, एक नेगेटिव कैरेक्टर, तो कहते हैं मैंने तालीम हासिल नहीं करनी, मैंने तुमसे कुछ नहीं सीखना, तुम हमारा वक्त ज़ाया करते हो। जब आपका माइंडसेट ये हो कि खुद बताओ हमें, तब हम देखेंगे उसका कोई असर कबूल करते हैं कि नहीं। इंटरेस्टिंग तरीके से हमें बताओ कि ये क्या है, तो उस पर अमल करते हुए वसीम खान ने एक नया सिस्टम वजह किया है कि डीएसपी एसएचओ वाज करें, बताएं। व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप स्टूडेंट्स के, पुलिस के, इमाम मस्जिद साहब के। इमाम मस्जिद इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, क्योंकि उसे पता है कि जी मस्जिद में इतने लोगों का इजाफा हुआ है, ये कमी हुई है, ये एक साहब है, ये फलां है, इस तरह की बातें होती हैं। इसको मुखबरी ना समझा जाए, आगही समझा जाए। मुखबरी एज अ बैड कॉनोटेशन। तो अगर यही सिलसिला पूरा सूबा अडॉप्ट कर ले, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसी पैटर्न पे पूरे पाकिस्तान की पुलिस काम शुरू कर देगी। सर उन्होंने मीडिया का सहारा भी लिया है, रेडियो एफएम 88.6 के जरिए लोगों को बताया जाता है कि ठीकरी पहरा लगवाएं, पुलिस के साथ लाइजन बनाएं, अपना मनशियात फरोशों को कैसे आपने बताना है। एक्सीलेंट है, बड़ी एक्सीलेंट। ये ना सिर्फ मुल्तान पुलिस बल्कि पूरे पंजाब पुलिस मुबारकबाद की मुस्तहक है। एक छोटी सी गुजारिश करके हम ये गुफ्तगू कंक्लूड करते हैं कि इसी का एक हिस्सा ये भी अगर किया जा सके तो कोई हर्ज नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट का कप्तान जो डीपीओ है वो इस बात को प्रायोरिटाइज करे कि हर 2 माह बाद ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, इनको चेक किया जाए, कोई रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाए, इनका नफ्सियाती और टेक्निकल मुआयना किया जाए कि इनकी गन चलती भी है कि नहीं, इन्हें चलानी आती भी है कि नहीं, ये ज़हनी तौर पर कैसे लोग हैं। अगर इन बुनियादों पर काम शुरू कर दिया जाए और अपना मुनासिब हिस्सा प्रो बोनो बगैर कॉस्ट के मीडिया बियर करे तो कोई वजह नहीं 50% क्राइम रेट आपका नीचे आ सकता है। Continuous रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि जहाज में बैठी खातून ने दौरान सफर खराटे लेने पर मुसाफिर को थप्पड़ दे मारा। शिकागो से मैनचेस्टर जा रही थी फ्लाइट,
وہ کہتی ہے ایسا ایسا ذات کا خراٹا لے رہا تھا میں نے پہلے تو کھانس کھانس کے دبے لفظوں میں احتجاج کر کے اس کے کان کے قریب کھانسی ہوں, اس سے نہیں سمجھ آئی. پھر میں نے پین کے ساتھ اس کو کچوکے لگائے, یہ تب بھی نہیں سمجھا. لیکن سر پتہ نہیں کتنا تھکا ہوا ہوگا بیچارہ, کیا پتہ نہیں اس نے کتنے لگائے ہوں گے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ فلائٹ کتنی ہے؟ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 9 گھنٹے کی ہوگی, 9-10 گھنٹے کی فلائٹ پہ بندہ اتنا, تو یہ سٹائل ہوتا ہے لوگوں کا. بس اگر نیند آ گئی تو پھر گئے. اور کچھ لوگ کرتے ہیں یہ جو خاص طور پر لیکر استعمال کرتے ہیں, موٹے ہوتے ہیں, فربا لوگ ہوتے ہیں, سموکرز بھی, ان کے ہاں یہ پرابلم رہتا ہے خراٹوں کا. اب ایک واقعہ یہ 2 دن پہلے کا ہے. اسپین کی ایک جیل میں ایک شخص خراٹے لیتا تھا تو بار بار اسے منع کرتا, نہیں باز آیا, اس نے گلا گھونٹ کے اسے جان سے مارتی. یہ ایلیکانٹے پریزن ہے. کراٹے انسان خود تو نہیں سر لیتا. سویا ہوا آدمی, اسے اس پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا, ورنہ لوگ بڑا شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے. ابھی UAE کا ایک واقعہ ہے, ایک مہمان گیا کسی کے ہاں تو خراٹے لیے اس نے بڑے بڑے کلاس کے, تو انہوں نے ریکارڈ کر لیے اس کے خراٹے, وہ سنائے اسے ناشتے پہ, وہ بہت برہم ہوا. اس نے کہا اس پہ لعنت بھیجو کہ یہ میرے ہیں یا نہیں ہیں, یہ حرکت تم نے کیا کی, یہ میری پرائیویسی تھی اور تم ریکارڈ کرتے رہے ہو میرے خراٹے. اب دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک بیماری ہے, اس کو بیماری سمجھنا چاہیے, بیمار کو بھی اور متاثرین کو بھی. ارے ایک بندہ خراٹے لینا جی, بیوی نے طلاق لے لی, بے شمار طلاقیں. ٹام کروز کی بیوی نے تو اس کا کمرہ کئی 100 فٹ دور بنا دیا تھا کہ بھئی یہاں رہو, اور اس کمرے کو سنورٹوریم کہتے ہیں, جیسے سینیٹوریم ہوتا ہے نا, یہ سنورٹوریم ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ سنورنگ کر سکتے ہیں. نیپولین کی بیوی بہت تنگ تھی. ٹیڈی روزویلٹ امریکی صدر, بڑا خوفناک خراٹا لیتا تھا وہ. ہاسپٹل میں ایک دفعہ اسے داخل ہونا پڑا تو سیکرٹ سروس نے اس کا کمرہ چینج کر دیا کہ سر کسی ایسے کمرے میں ہوں جہاں آپ کے خراٹے باہر سنائی نہ دے. پورے غلام گردش میں برآمدے میں آپ کے خراٹے کی گونج ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کیسے صدر ہیں. تھا بھی وہ بہت موٹا بھاری بھرکم. یہ فرینکلن روزویلٹ نہیں ہے, یہ تھیوڈور روزویلٹ, ٹیڈی روزویلٹ جس کو کہتے ہیں. سر یہ موٹے نہیں, میں نے بڑے سلیم سمارٹ لوگوں کو بھی دیکھا خراٹے نہیں, میں. موٹے کا عام طور پہ ہوتا ہے کہ اندر سے وہ جو ٹریک ہے نا وہ تنگ پڑ جاتا ہے چربی کی وجہ سے, تو اس میں پھر مسل کمزور ہو جاتا ہے. عام طور پہ موٹے زیادہ لیتے ہیں. اس کی تھیراپی ہے, آپ پیر کے اوپر والے حصے کا مساج کریں, انگلیوں کا مساج کریں, پھر ٹریٹمنٹس ہیں اور 2-3, اس سے علاج ہو سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. ایک ہے ریفلیکسولوجی ٹریٹمنٹ, اس سے اس کا علاج ہوتا ہے. سر ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ خراٹے لیتے ہیں عورتوں سے. 40 سال کی ایج کے بعد ویسے وہ گلے کے جو مسلز ہیں وہ کمزور, گلے کے مسلز, تالو کا خاص طور پہ مسل, یہ کمزور پڑ جاتا ہے, تو اس سے جو آواز نکلتی ہے اس کا ایفیکٹ تقریباً وہ ہوتا ہے جیسے دھامے اور پڑے کا ہے نا. واہ واہ. میں آپ کے فریم آف ریفرنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مثال کیا مدن موہن خراٹا مارے. تو یہ وجہ بنتی ہے. ولیم ٹافٹ ایک تھا امریکی صدر, جو اتنا موٹا تھا کہ ٹب میں پھنس گیا تھا. ہاں جی, وہ بھی ایسا سا خراٹا لیتا تھا, سنا 2-3 جنگیں اس کے خراٹوں کی وجہ سے. ایک چیز کا خیال رکھا کریں, وہ ہر لحاظ سے آپ کو ہیلپ کرے گی. ایک تو کھانے کے فوراً بعد سوئے مت, کم از کم 3 گھنٹے کا گیپ ضرور دیں. کوشش کریں کہ آدھا پیٹ کھانا کھائیں. کیا بات, اگر 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو 1 کھائیں, کیا بات. 4 کی بھوک ہے تو 2 کھائیں. انہوں نے 50 دی ਭੁੱਖ ਤੇ 5 ਖਾਣ ਫਿਰ. اور یہ کون لوگ ہیں؟ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ. ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨੀ ਪਈਆਂ. ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਵੇ. ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਟੇ ਨਾ ਮਾਰ. ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਏ ਚੋਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ. ਫੇਰ ਮਾਰੀ ਮਨ ਚਪੇੜ, ਫੇਰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ. ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਔਰਤ. ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਇਹ ਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ. آپ جس طرح کی ہاتھ چھٹ اور بدتمیز ہے نا, یہ ٹھیک کیا تھا ان کے بنوئیے نے. ਬਸ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਟੁਰ ਗਈ. آپ کہاں گئے بھائی جان؟ ਮੈਂ ਸਰ ਜੜਾ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ. ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ. شکاگو کیا کر رہے تھے؟ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸਰ. ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਵਈਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ. ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ. ਚੁੱਪ ਕਰ, ਗੱਲ ਕਰ.
ये हरकत मत करें। ਉਹਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ। अरे जहाज एडी बदतमीज सवारी पा लेंदा। अच्छा जी, उन्होंने फिर इनकी सीट चेंज की। अच्छा बाजी ने उतरदे भी ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। सर मैंने पैसे खर्च के टिकट खर्चा। टिकट ना, उसने अगर टिकट लिया है, अगर टिकट, तो फिर उसको उस टिकट के बदले में कुछ अच्छा, इस जैसा कैरेक्टर एक और था, आप उसकी बड़ी नकल उतारा करते थे, वो दोहा वाला हमारा दोस्त नजाकत अली। वो अपना नाम नजाकत अली नहीं कहता, नजाकत अली। ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਢਾੜੀ ਹੈ। आप वहाँ सेटल है शिकागो में? मैं बस सेटल हूँ, मेरे अपने फ्लैट है वहाँ पे। अखीर ने ओबामा का साला निकलना इन्हें बूट जुरासिक पार्क वाले पाए नहीं। जी सर, खाने में आपको क्या पसंद है? बीफ और मटन। बीफ और मटन मिक्स करके खाता है। और खाना कच्चा है। सर आप मुझे कोई शिकारी टाइप लगते हैं। शिकार का मुझे बहुत शौक, मैं शिकारियों के साथ जाता हूँ। एज ए पॉइंटर। क्या क्या आप शिकार करते हैं? मग का शिकार करता हूँ, बिलौर और बटेर, और मेरी गन्ने जो हैं ये इंग्लिश है सारी। रहता शिकागो में है, गन्ने इंग्लिश रखी हुई हैं। हालांकि क्या अच्छी गन्ने, अमेरिकी गन्ने। अच्छा, शिकागो में शिकार कहाँ करते हो? सीयर्स टावर। ये जवाब हुण मामा। मैं कह रहा इत्थे पाकिस्तान च बिजनेस करो तुसी, बड़ा अच्छा है इत्थे हुण। यहाँ पे क्या बिजनेस करूँ भाई? क्या मशवरे दे रहे हो आप? लाहौर दारा हर को 10 किराया कोई नहीं देता। अच्छा, पसमानदगी लोगों के मुहावरों से भी टपकती है। हाँ जी, हाँ जी। यानी तुमने जरूर बताना है किसी को कि तुम किराए के मोहताज हो। अब ये कहता है मैं सोने का कारोबार। सर मैंने मिसाल दी है, आपने मेरी बात पे अलीजा गौर नहीं किया। अलीजा, वाह। ये फिरोजपुर बटुआ का मरासी जे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, फिरोजपुर वटुआ कौन सा है भाई? फरोज बटुआ फिरोज वटुआ। बसंत ते अगले दी पतंग कट्टी जावे ना, तेरे रेखो सरे नु बहुत नचाउंदे फिर। तो सर एक टोटका ये भी कहा जाता है कि जो खराटे ले रहा हो उसका वो जूता जो है वो अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो बंद हो जाते हैं। इसमें क्या निहायत फजूल बेतुकी इंतहाई अहमकाना बात है, इससे कुछ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा उसका अंगूठा पकड़ के ना वो ऊपर कर दे, और अगर बाज ना आ रहा हो तो यहाँ ले जाके छोड़ दे। सर ये दोनों को बांध दें आपस में। मैं कहता हूँ उसका मुंह बांध दे। आपने ये टोटका ट्राई किया था, ये अंगूठे वाला? मैं ते दी जुट्टी पुट्ठी करके भी इन्हू मारी है, फिर नहीं इन्हू होश आई। तुमने इसका जूता उठाया कैसे? यकीन करो जिन्नी मैनू नींदर आई सी ना, मैनू कुछ समझ नहीं सी आन डई। इन्हें सुते पे है फांसी भी देती है। आपको चाहिए था अपने कानों में कुछ ठूंस लेती। और मैं पाए सन प्लास्टिक दे जे, फिर भी एडा रौला पिया है। आप वहाँ पे मुस्तकिल रहते हैं? मैं काफी अरसा दराज से वहाँ रह रहा हूँ। अच्छा काफी अरसा दराज। तो यहाँ आप ईद मनाने आए हैं? ये बंदा शिकागो तो गोश्त लेना आया। भाई मैं अदबी आदमी हूँ। भी आदमी आप जी। जी, मैं शायरी भी करता हूँ। किस तरह की? गिले हजार सही, हद से हम बढ़ेंगे नहीं। है कोई बात मगर आपसे कहेंगे नहीं। यार शहजाद अहमद का शेर सुना दिया इसने। कहना चाहता मैं आपको इस पर 100 रुपया नजर दूंगा। 100 रुपया आप मुझे दे देंगे, घर कैसे जाएंगे आप? भाई साहब काफी तसल्ली। एक गरीब रू दूजे का एहसास होता है। अच्छा आपके घर में स्विमिंग पूल तो होगा? ये स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में नहाते हैं आप? मैं 9 बजे से लेके 10 बजे तक स्विमिंग पूल में नहाता हूँ। तो जब आप स्विमिंग पूल से स्विमिंग करके निकलते हैं तो लोग तेनू कहते नहीं सह की कीता है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं? ब्रेकफास्ट करता हूँ। क्या? मैं निकलते पहले जूस पीता हूँ। कपड़े नहीं पहनता? स्विमिंग पूल से निकल के टॉवल से अपने आप को खूब खुश करता हूँ। उसके बाद पूल वाले उस टॉवल को जलाते हैं। फिर उसके आसे पासे धमाल पाउंदे झिंगा ला झिंगा। नहीं तो पानी जिससे नहाते हैं उसके बाद वो पानी फिर फेंक देते हैं। पानी चलता रहता है, एक तरफ से पानी आ रहा है फिर बहता चला जा रहा है। लो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कसम खा के कहना नाले च नहाउंदा जे। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ? उसके बाद अपने रूम में जाते हैं आप? मैं रूम में जाता हूँ, वहाँ पे मैं अपना ड्रेस चेंज करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। वाह, बहुत अच्छे। उसके बाद उठ के फिर मैं अपनी जो है ना एक्टिविटीज जारी रखता हूँ। तो नाश्ता नहीं करते आप? नाश्ता मैंने कर लिया, भी मैं जेलों आया, मैं हम कड़ी मुड़ी फेंक